So welcome to that demonstration. So here the question is basically from CDS 2021. So question should be say find the value of x. Okay, हमें we are finding value of x. X value हमें find करना है. हम कैसे find करेंगे सर basically? See 12/7 minus 6/7 minus 3/5 minus x is equal to x. Okay. So in this question, basically, we have using simple method, two method. We have using two method. We have using two method. Okay. First we have long method. Second is this simplest method. We put the value all the मतलब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम चारों वैल्यू पुट करके दे सकते हैं. ठीक है. या ये मन में भी हो सकता है ये क्वेश्चन. ठीक है सर. जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. तो जस्ट वी हैव सॉल्व that we have getting that is x is equal to what we have getting that is 12 and then we have taking the LCM. इन दोनों के बीच में हम क्या लेंगे सर LCM लेंगे. अब जैसे ही हमने LCM लिया that is how much that is 7 minus. Okay, so here we have taking the value is 7 minus. Okay, here we have taken the value is 7 minus 3/5x. That means we have getting how much the term should be. That is how much we have getting the term should be. That is here the term should be that is 6 and then 5 minus x हो जाएगा यहाँ पे ये नीचे ऊपर आ जाएगा. फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली देखो सुनो यहाँ पे हमारा आ जाएगा that is 7 into 5 minus x and then minus 3. Okay, that's the term. So just multiply of them, then how much we have gotten that is x is equal to how much we have getting the answer. That is x is equal to 12/7 minus 6 5 in minus x and then here the value should be 7 to how much we have taken the value across. यहाँ पे हमारा इस value का कितना बन रहा है that is 7 5 35 minus 7x minus 3. Okay, so which is around that is how much value basically कितनी आ रही है value हमारी ये that is how much we have taken this one value. So here the value should be that is 32 minus 7x. Understand? So then what we have taken that is 32 minus 7x. Okay, just again taking the LCM of the equation. This is x is equal to 12 upon that is how much we have taken. Again taking we have LCM 7 into 32 minus 7x and then minus 6 into 5 minus x and then into ये ऊपर चला जाएगा that is 32 minus 7x. ओके, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी. अब जैसे कि हमने यहाँ पे अगले टर्म में हमारा कितना आ जाएगा that is how much we have gotten. So here the term should be that is x is equal to 384 and minus 84 12 7 84 x and then here the value should be getting ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी that is how much we have taken. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. एक लॉन्ग मेथड से ही था, लॉन्ग मेथड से बहुत टाइम लग रहा है that's why we are not using this one methods. 192 194 minus 43 x. ओके, ये वैल्यू आ रही है. 7 को 32 से मल्टीप्लाई को 7 7 49 and then 49 plus 6 that is how much 49 plus 6 minus 49 plus 6 that is 43. So we have taken positive one. Okay, so then how much we have taken this one that is 194 minus 43 x. Okay, so just we have using the method we are using multiply that is 194 x minus 43 x square is equal to 384 minus 84 x. So just we have multiply of them. So how much we have written that is minus 43 x square and then equal to how much that is minus 284 plus that is 278 that is plus 278 x and then minus 384. So यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी that is how much we have getting across
that is how much? So here the value that is 43x squared minus 278x plus 384 is equal to 0. Okay, so we have discussed on another method. यहाँ पे हमारी वैल्यूज क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे. We have factorized the equation. Okay, so factorize the equation, that is how much we have taken. So here the value should be, that is x minus 2 and then 43 minus x minus 192. 192 is equal to 0. So that means x is equal to 2 and then x is equal to 192 upon 43. So here the value should be, that is how much, कितना आ रहा है वैल्यू हमारी, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है, that is how much we have taken. यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है, देखो ये 192 डिवाइड करोगे, 192 डिवाइडेड बाय 43, that is 4.4 समथिंग अक्रॉस आ रही है ये, that is 4.46. तो दैट मीन्स ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता कि ये तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन में. अब यही हमारा ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. लेकिन अगर शॉर्टेस्ट मेथड से देखा जाए, शॉर्टेस्ट मेथड से अगर इफ वी हैव पुट द वैल्यू इनसाइड देयर, ठीक है, अगर हम क्या करें डायरेक्टली पुट कर सकें. अब देखो डायरेक्टली कैसे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 बाय 1 नहीं दे सकते. देखो हम स्टार्टिंग में 1 पुट करेंगे तो दैट इज 5.4, 3.4 टेकिंग एलसीएम. अब हमने यहाँ पे 2 पुट किया, दैट इज 5 माइनस 2, दैट इज कि देखो क्वेश्चन में ही देखो, क्वेश्चन में ही देखो, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखो. अब देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 डिवाइड बाई 3 कैंसिल आउट, 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 3. समझिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिर समझा दे रहा हूँ. देखो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं 12 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2, दैट मीन दिस वन इज कैंसिल आउट. अब यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, दैट इज हाउ मच वी हैव टेकन. यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है, ये टर्म वैल्यू आ रही है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 7 माइनस हाउ मच, दैट इज 1, तो 6 आ रही है. तो ये भी कैंसिल हो जा रही है. तो ये सॉर्टेड मेथड है. तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 12. अब 12 divided by 7 minus 1. So which is around, that is 12 by 6. That is 2 answer. ये 2 आंसर आ गया ना. ये शॉर्टेस्ट मेथड है. शॉर्टेस्ट मेथड क्या है कि यहाँ पे हमने अगर 2 पुट करोगे तो 5 माइनस 3, दैट मीन्स 3 वैल्यू आ रही है. यही शॉर्टेस्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है. आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड. मतलब पहले मेथड समझे क्या हुआ, पहले मेथड में हमने क्या किया कि लॉन्ग मेथड से हमने फैक्टराइज किया, आंसर आ गया. लेकिन इन शॉर्टेस्ट मेथड में हमने क्या किया, ऐसी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या बेसिकली हम देखना है, यहाँ पे हमें एक मैनर देखना है, स्पेसिफिक मैनर. ठीक है, स्पेसिफिक मैनर से हमें इसको सॉल्व करना है कि कैसी कौन सी वैल्यू ले कि हमारा आंसर आ जाए. सिंपल वैल्यू है, 5 माइनस 2 दैट इज 3, 3 बाई 3 दैट इज 1, 7 माइनस 1 दैट इज 6, अगेन कैंसिल आउट, 6 बाई 6 दैट इज 1, 7 माइनस 6 दैट इज हाउ मच, कितना आ रहा है, दैट इज बेसिकली दैट इज 7 माइनस 1 दैट इज 6, 12 बाई 6 दैट इज हाउ मच, x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, that is 2. I think yeah, the first question we have expression. So let's go on second question. So basically the second question हमारे यहाँ पे क्या है? So basically we have discussed on it. So here the second question, that is what the second question are there. Wait a minute. Yeah. So the second question is what? Wait a minute. I just discuss on it. The second question, that is 17 question. Okay. Here the 17 question. So let's we have discussed on 17 question. Okay. तो 17 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपलेस्ट मेथड में देखा जाए. ठीक है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, 8x. हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस. यहाँ पे हम 2 मेथड से बताएंगे, 2 मेथड. फर्स्ट है लॉन्गेस्ट मेथड, सेकंड इज व्हाट, second is basically we have discussed a smallest method. You just solve the question in a 2 minutes. Okay. सो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पुट करते हैं, जहाँ डायरेक्टली यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, दैट इज हाउ मच वी हैव टेकन. देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 8x माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स की पावर 4 एंड देन माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड देन माइनस x माइनस 1 एंड देन x प्लस 1.
अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? सो अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमने ऐसे कौन सा टर्म लेना है जिसमें हम टेकिंग बोथ द टर्म इज कांस्टेंट। तो देखो ये जो टर्म बन रहा है, यहाँ पे कौन सा टर्म हमारा जो अलग टर्म बन रहा है, वेट अ मिनट। सो हियर द टर्म, या दिस वन टर्म, इसको टर्म को हम अलग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया दैट इज 8x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 एंड देन प्लस एंड देन plus how much we have taken the value across that is how much we have taken the value across that one. So the value should be, yeah, हमने क्या किया, इसको एक्सप्रेस करेंगे that is minus 4x upon x square plus 1, taking LCM of that equation. So how much we have given, that is x plus 1 का whole square and x minus 1 का whole square, and then upon how much, that is x minus 1 का and then x plus 1. ओके, अब इस टर्म को हम कैसे लिखते हैं? इस टर्म को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सो जस्ट राइट द इक्वेशन दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब सेम टर्म ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम टर्म हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि just write that is 1 minus x and then 1 plus x and then 1 plus x square. Okay, so यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, that is how much is 8x upon 1 minus x and then 1 plus x and 1 plus x square. Okay, and then minus 4x upon x square plus 1, and then the other value should be taking, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, and here the same value, that is x square plus 1 minus 2x. So all the value is cancelled out, but here the remaining part, that is 2x and 2x, that is 4x हो जाएगा। 4x upon, here the value ये क्या बन जाएगा, a minus b, that means a minus b का whole square, x square minus 1. Okay, again we have taking LCM of that equation. Okay, अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर लेते ही नहीं, ठीक है। तो जस्ट वी हैव राइट दैट, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको माइनस, यहाँ पे हमने क्या किया, या एक्स माइनस 2 यहाँ पे, ठीक है, 2x है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले टर्म में बेसिकली हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया। जिससे माइनस कॉमन लेंगे ऊपर 4x हो जाएगा, लेकिन हमारा नीचे क्या बन जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको तो चेंज कर लोगे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। दैट्स वाई आई एम टेकिंग माइनस कॉमन। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली नेक्स्ट टर्म में ऑल द टर्म शुड बी टेकिंग कॉमन। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा टर्म, दैट इज हाउ मच वी हैव टेकिंग। यहाँ पे टोटल टर्म को हम कॉमन ले रहे हैं, so which is getting across it is 1 minus x and then 1 plus x। यहाँ पे हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, and then same value, that is x square plus 1। so यहाँ पे हमारा क्या है, that is 8x, यहाँ पे क्या आ रहा है, that is 4x and 1 plus यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 plus x and 1 minus x। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, that is 4x 1 plus x square। Okay, so let's we have discussed on it, that is how much we have taken। यहाँ पे हो जाएगा 8x minus how much, that is कितना आ रहा है, 4x cube, that is 4x cube and then
minus 4x. Here the same value, that is minus 4x cube minus 4x. Okay. So how much we have taken and divided by how much, that is 1 minus x and then 1 plus x and x square plus 1. So यहाँ पे जो वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है, जस्ट वी हैव सीन द वैल्यू अक्रॉस दैट, यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू कैंसिल हो, दैट इज 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x दिस वन इज कैंसिल, दैट मीन्स 0 बाई कुछ भी होगा तो ये वैल्यू होगी, दैट बिकम द आंसर इज 0। तो यहाँ पे ए आंसर हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड, शॉर्ट टर्म मेथड। शॉर्ट टर्म मेथड, शॉर्ट टर्म मेथड हम कैसे लगाएंगे? बेसिकली अगर इफ वी हैव पुट 0, ठीक है, अगर क्या करें हम ऐसे टर्म, इस तरह के टर्म लें कि हमारा 0 टर्म आ जाए। अब देखो ये टर्म हम कैसे कैसे ले सकते हैं? 0 0 -1 -1 1, दैट मीन्स ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पर हमने 0 रखा, 0 0, ये टर्म 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स ऑल द टर्म बिकम 0, दैट्स व्हाई वी हैव टेकिंग 0। अब जैसे कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, शॉर्ट टर्म मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो टू मेथड्स आर अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। So let's we discuss on third question. Okay, let's we have discussed on third question. So here the third question. Okay, here the third question is given. What we have third question? So here the third question is given, that is what? Wait a minute. So here the third question is what? That is, wait a minute, I just seen this one. That is, so here the question is given. That is, wait a minute, I just seen using another pen. That is 1 upon BC minus A minus B and then A minus C and then plus 1 upon CA and then B minus A and then B minus C, and the last term, that is 1 upon AB C minus A and C minus B. Okay, let's taking LCM. Taking LCM. So what we have gotten the answer. So here the answer should be, that is how much. कितना आ सकता है हमारा आंसर? देखो इसका आंसर तो वैसे देखो डी आएगा, 0 आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन होता है, इस तरह क्वेश्चन डायरेक्टली तुम 0 लगा देना। ठीक है, अगर इस तरह का सेम क्वेश्चन आया तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया। द एलसीएम शुड बी, दैट इज हाउ मच, दैट इज ए बी सी, एलसीएम ए बी सी एंड देन ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, एंड बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? सी माइनस ए। सो एक चीज का प्रॉब्लम क्या है? एक चीज का प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम आएगी वो हमें ठीक करना है। So what is the basic problem inside their question? Okay, so then last term should be, that is C minus A. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी मिल रहा है, यहाँ पे हमारा a माइनस बी टर्म नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वी हैव माइनस लेंगे, दैट इज a माइनस बी। अब यहाँ पे हमारा a माइनस बी है ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस सी, यहाँ पे हमारा b माइनस सी, ठीक है, a माइनस सी एंड b माइनस, बस यहाँ पे हमारा क्या है? c माइनस है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? c माइनस a। ओके, b माइनस सी और c माइनस b, तो that's why we have taken this one area, that is minus b minus c। तो मतलब यहाँ पे हमारा माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस, अंडरस्टैंड, माइनस माइनस। सो लेट्स वी हैव टेकिंग द वैल्यू, हम यहाँ पे एलसीएम कॉमन लेंगे तो ए बी, यहाँ ए टर्म नहीं है, फिर इसके बाद ऐसा कौन सा टर्म नहीं है? ए माइनस बी और बी ए माइनस सी, इस ए मतलब ए माइनस सी माइनस ए है। ठीक है, ये हमने ले लिया था क्योंकि ये जो टर्म हम लिया है, एंड दैट्स वाई दैट इज बी माइनस सी। ठीक है, एंड अनदर टर्म दैट इज माइनस, हाउ मच वी हैव टेकन, that is how much we have taken, that is we have taken the value basically, that is b
and a minus c, and again the term should be that is c, that is b minus a. So just we have taking positive one, that is ab and ac plus ba minus bc plus cb minus ca, and then upon how much, that is a b c and a minus b, b minus c and c minus a. That's all the terms should be cancel out. यहाँ पे जितने भी टर्म है cancel. a minus b cancel, a minus c cancel, b, this one cancel. That means 0 by, here the answer is 0. Okay, here the answer is 0. So देखो यहाँ इस क्वेश्चन में 0 आंसर आ रहा है, तो देखो एग्जाम्पल इसका यही मेथड हो सकता है और कोई मेथड है नहीं. So let's we have discussed the last question. यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं. तो ये द लास्ट क्वेश्चन. ओके, अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बस इसमें हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. then we post this question. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, दैट इज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज p इज इक्वल टू रूट 3q plus 2 and then plus root 3q minus 2 and then upon is how much, that is root 3q plus 2 minus root 3q minus 2. अब देखो ये टर्म हमारा है डिस्टेंस द पेन. अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देते हैं कि बाई कॉम्पेंडो. क्या लिखाएंगे, कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो. मतलब क्या बोलते हैं, रैशनलाइज, एज इट इज टर्म शुड बी रैशनलाइज. कॉम्पाउंड टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे. कॉम्पाउंड टर्म में क्या होता है, दैट इज p plus 1 and then p minus 1 is equal to how much we have taken. Just we have taken the value. यहाँ पे हम ये लेंगे, that is root 3q plus 2 and then 3q minus 2. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, both side squaring method apply. Both side squaring method we have applied. So how much we have gotten this answer, that is p plus 1 ka whole square and then p minus 1 ka whole square and then equal to 3q plus 2. रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा and 2q minus 2. ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बेसिकली ये टर्म हमारा क्या बन रहा है. Again we have applied same method inside. देखो, again we have applied same method on inside this one, that is compondo and dividendo. हम यहाँ कौन सा मेथड यूज करेंगे, we have using the method is copendo and dividendo. तो कोपेंडो हम यहाँ पर तो डिस्कस कर दे रहे हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं उस पर हम डिस्कस कर दे रहे हैं. सो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है उस चीज पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, उस चीज पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो जैसे कि ये चीज हम कोपेंडो में हम क्या करते हैं कि देखो, सो जैसे कि हमें यहाँ पर बता दे रहा हूँ साइड में, अगर कोपेंडो में हमारा यहाँ पे क्या होता है, दैट इज a अपॉन बी या c अपॉन डी. तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, दैट इज a प्लस b अपॉन c, b अपॉन b एंड देन अगेन द टर्म दैट इज c प्लस d अपॉन d. इन कोपेंडो एंड डिवेंडो अगर दोनों मेथड यूज करना है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे हम दोनों मेथड यूज करना है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें इन दोनों मेथड का यूज करना है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b एंड देन c प्लस d एंड देन c माइनस d.
ये बेसिक फॉर्मूला है। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं। ये द फॉर्मूला, ओके, ये द फॉर्मूला। So again we have applied on this question. Just first of all we have p square plus 1 plus 2q, and then p square plus 1 minus 2q is equal to 3q plus and then 3q minus 2. अब तो लास्ट टर्म में हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज हाउ मच वी हैव गिवन। यहाँ पे हमारा हो जाएगा दैट इज 2p square plus 1 and then 4p, ओके, a plus b, p स्क्वायर प्लस 2q और माइनस कर दोगे, दैट मीन्स यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा यहाँ पे 2q और ये मतलब यहाँ पे 4p है, ये क्यों नहीं है, p बचेगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा, ठीक है। आई जस्ट इरेज दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इरेज, मैं यहाँ पे एक चीज इरेज कर रहा हूँ, द रीजन इज दिस वन। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली ये चीज इरेज होगी। अब यहाँ पे हमारा क्या था, दैट इज p था, ठीक है। दोनों को सॉल्व किए, इसी मेथड से हमने लगाया। अब यहाँ पे हमने भी किया सेम 3q प्लस 2, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, दैट इज 6q, 2 कैंसिल हो जाएगा एंड देन अपॉन यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, दैट इज 4। यहाँ पे हमारा टर्म कितना बन रहा है, दैट इज हाउ मच वी हैव गेट इन द टर्म। So the term should be, the last term should be, that is how much, that is p square, ठीक है, p square plus 1, यहाँ पे 2 cancel out, okay, and 4 cancel out and 2 cancel out, that is 3, that means multiply of that one is equal to 3pq, okay। So यहाँ पे लेके आओ p square minus 3pq plus 1 is equal to 0। तो कौन सा आंसर आ रहा है, a आंसर is 0 is a correct answer। सो नहीं, 0 आंसर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा p, यहाँ पे हमें जो निकालना है दैट इज p स्क्वायर माइनस 3pq plus 2 minus 1 is equal to 0, that's become, that is p square minus 3pq and then plus 2 is equal to 1, that means 1 आंसर आ रहा है। that means कौन सा आंसर हो गया, b option is a correct option। which option should be correct, b option is a correct option। so यहाँ पे हमारा b option correct हो गया। I think this question explanation should be good। so if you like this video, please give the demo, give the verify on this video, okay। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बाकायदा हर एक फॉर्मूला का यूज करके मैंने बताया, ठीक है। जैसे कि हर एक फॉर्मूला का यूज करके बताया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने शॉर्ट मेथड बताया, लॉन्ग मेथड भी बताया। शॉर्ट मेथड वाला इजी था, इस क्वेश्चन में आराम से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सीरियस पेपर में क्या होता है, टाइम लगता है। अब देखो शॉर्ट मेथड बताया, लॉन्ग मेथड बताया। अब देखो यहाँ से मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि बेसिकली मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है विथ यूजिंग द basic formula। I think hope you get your answer। So if you get the answer, please like and give the selection on the Unacademy platform as a serious doubt solver। Thank you।